بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ میرے برابر میں سو رہا تھا جس کے ساتھ مجھے رات گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میرے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دل میں ایک خوف سا بھی تھا کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا اب تک میں جن لوگوں کا اعتماد جیت چکی ہوں، اس لیے میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو رات کو شراب کچھ زیادہ ہی پلا دی تھی، اس لیے مجھے اس شخص کے جاگ جانے کی فکر نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ شخص یہاں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں اس کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس لیے میرا وہاں سے نکل جانا مشکل نہیں تھا۔ میں کئی بار پہلے بھی یہاں اس شخص کے ساتھ آ چکی تھی، اس لیے مجھ پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس بار بھاگ جاؤں گی، کیونکہ میں نے جذبات کے بجائے اب عقل سے کام لیا تھا۔ اس بار میں نے سوچ سمجھ کر پورا پلان بنایا تھا۔ میں ایک جسم فروش عورت تھی۔ مجھے 15 سال کی عمر میں میری سوتیلی ماں نے بیچ دیا تھا۔ مجھے خریدنے والی ایک طوائف عورت تھی جو مجھ سے جسم فروشی کا کام کرواتی تھی۔ پہلی بار جب میں نے کوٹھا دیکھا تو بری طرح سے گھبرا سی گئی تھی۔ لاہور کی چھوٹی تنگ گلیاں جس میں بنی ٹوٹی پھوٹی خستہ عمارتوں سے گھنگرو اور بے ہنگم گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عورت برقعے میں تھی، میرا ہاتھ کس کے پکڑ رکھا تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے باپ کے مرتے ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے دوسرے دن ہی اس عورت کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ میں نے جب جانے سے انکار کیا تو میری ماں نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا تھا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ بس کے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد میں لاہور کے بڑے بازار یعنی کہ ہیرا منڈی میں پہنچی تھی، جہاں کے پرانے 2 منزلہ عمارتوں کو دیکھ کر مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ میں اپنا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہاں سے گزرنے والوں کی نظریں اس قدر غلیظ تھیں کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک تو تنگ گلیاں، اس میں موتیوں اور گلابوں کے ہار اور گجروں کی دکانیں جس پر عطر کی شیشیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، کہیں پان کی دکانیں اور دیوار پر لال پچکار کیے ہوئے نشانات۔ دیواروں کا اصل رنگ ہی ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک پرانی سی عمارت کی تنگ سیڑھیوں سے چلتی ہوئی ایک بڑے سے صحن میں پہنچی تھی جہاں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اطراف میں گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف 2 بڑی عمر کے شخص ہارمونیم اور ڈھولک رکھے سفید شلوار قمیض میں ملبوس منہ میں پان دبائے بیٹھے تھے۔ ایک طرف تخت سا رکھا ہوا تھا جس میں 50 سالہ عورت شوخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے فل میک اپ میں منہ میں پان دبائے ہی آڑی سی تخت پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ڈری سہمی نظروں سے اس صحن کو دیکھ رہی تھی جہاں مجھے اگربتیوں کی تیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ مجھے وہ عورت اس پر تخت پر بیٹھی ہوئی اس عورت کے پاس لے جایا گیا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تخت پر بیٹھی عورت نے مجھے بڑی تیز نظروں سے سر سے پیر تک دیکھا تھا، پھر اپنے پاس رکھے اگال دان کو پکڑے، پہلے اس میں پان کی پچکاری پھینکی، پھر اس نے برقعے والی عورت سے بولی، لڑکی تو دیکھنے میں ہیرا ہے، میرے کوٹھے جو 4 چاند لگائے گی۔ میں بدحواسی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نیلو نیلو پکار کر ایک لڑکی کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، اسے اپنے ساتھ لے جا اور ناچ گانا سکھانا شروع کر۔ وہ نیلو نامی لڑکی مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئی۔ میری والدہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں، اس لیے میں نے بھی کم عمری میں ہی قرآن پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے ناچنے گانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے یہاں پر کام مار مار کر سکھایا گیا۔ 6 ماہ بعد میرا پہلا رقص کروایا گیا اور اس کے بعد میری بولی لگنا شروع ہوئی۔ میں 16 سال کی بھی نہیں تھی جب میری عزت کو پامال کیا گیا۔ میں بہت روئی تڑپی، لیکن یہاں بے حس لوگ تھے جن کے پاس دل نہیں تھا، پتھر تھا پتھر۔ مجھے نماز پڑھنے کی عادت تھی، میں نماز نہیں چھوڑتی تھی، رو رو سے اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتی تھی۔ پہلی بار میں نے وہاں کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پکڑی گئی تھی۔ مجھے اس عورت نے بہت مارا تھا، میرا جسم اور چہرہ نیلا کر دیا تھا۔ اس کے بعد تو میں نے یہ جرت ہی نہ کی، لیکن مجھے کام سے نفرت تھی۔ میں ہر وقت وہاں سے نکلنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ 1 سال بعد
मुझे मर्दों के साथ भेज दिया जाता, जो कि इस तवाइफ के पुराने गाहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोठे पर छोड़ जाते। ये शख्स भी मुझे कई बार यहाँ ला चुका था। मैं ये करती थी कि मैं उसे ज्यादा शराब पिला देती थी, इतनी ज्यादा कि वो शख्स जल्द ही नशे में चला जाए। इसलिए कभी तो ऐसा होता कि मैं रात उसके हवस का निशाना बनने से बच जाती। जब वो सुबह जागता तो कहता, हमें तो रात की कोई बात ही याद नहीं। तो मैं कह देती कि मुझे तो याद है। पैसे वसूलना तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं ये बात कुछ इस अदा से कहती कि वो यकीन कर लेते। जिस जगह की मैं बासी बन चुकी थी, मैं जानती थी कि यहाँ अकल की वजह से ही कभी इस दलदल से मैं निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मैं ये अजियतनाक वक्त 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं उनका एतमाद जीत चुकी थी। कई बार मुझे बंगले वाले भी अपने साथ ले जाते थे, फिर मेरा रक्स देखकर खुश होते और फिर अपनी रात की रंगीनी पूरी करते। पहले तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। उन्हें लगा कि मैं आदी हो गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने साथ अपना बुर्का पहन कर आई थी। अब भी बुर्के में ही मैं बाहर निकली थी। मुझे मेन रोड से रिक्शा मिल गया। मैंने रिक्शा लिया और सीधा बस के अड्डे पर पहुंच गई। उस वक्त एक बस पिंडी जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने पिंडी का ही टिकट खरीद लिया। मुझे जल्द से जल्द लाहौर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर खौफ आता रहा कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या खबर अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे चुटिया से पकड़कर वापस उसी तवाइफ के पास ले जाए। बुर्के नकाब में भी मुझे अपना चेहरा बेहिजाब सा लग रहा था, जैसे मुझे कोई नकाब में भी पहचान जाएगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही डर रही थी। मेरा दिल खौफ के मारे फड़फड़ा रहा था। बस जब तक चल ना पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई ही महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं लाहौर से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बहाल होता हुआ महसूस हो रहा था। पिंडी पहुंचकर मैं कुछ पुरसुकून हुई थी। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी थीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। पैसे बस इतने ही थे कि मैं बस के टिकट खरीद लेती। उस शख्स के बटवे से इतने ही निकले थे जिसके फ्लैट से मैं निकलकर भागी थी। बहुत से रिक्शे टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, मेरा पैदल का रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था, मुझे भूख भी लगने लगी थी और मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना किसी रास्ते का तयन किए एक तरफ चल पड़ी। मैंने दाएं बाएं देखा तो गलियों में बहुत से घर बने हुए थे। मैंने सोचा, किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे काम के लिए रख लें ताकि मैं अपनी इज्जत की जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मैं गली के अंदर दाखिल हो गई। चंद घरों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से इनकार कर दिया। अभी कुछ दूर ही गई थी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक शख्स वाकई मेरे पीछे आ रहा था। देख मुझे ही रहा था। मैं तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगी तो उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा कि शायद मुझे नकाब में ये शख्स पहचान चुका है। शायद ये उसी औरत का भेजा हुआ कोई शख्स है। इससे पहले कि मैं भागने लगती, वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की अशद जरूरत है और वो सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं रुक गए। वो शख्स मुझसे चंद कदम पीछे था, इसलिए फौरन से मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे अपने घर के लिए एक मुलाजमा चाहिए, लेकिन दिन रात के लिए। लेकिन मैं इस इलाके का रिहायशी नहीं हूँ, बस यहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको काम मांगते देखा तो सोचा कि आप जरूरतमंद लगती हैं। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी। पता नहीं सच बोल रहा था कि झूठ, लेकिन एक सच ये भी था, मुझे उस वक्त काम की अशद जरूरत थी। मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? कहने लगा, कुछ फासले पर मेरा घर है, अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। कुछ देर में मैं ये सोचती रही कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। फिर सोचा कि चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, चलें ठीक है, दिखाएं आपका घर कहाँ है। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसने मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर का पता समझाने लगा। तो क्या वो यहाँ करीब में नहीं रहता था? फिर मुझे कहने लगा, आप टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठ जाएं। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा।
मैं बैठते हुए कुछ हिचकिचा सी रही थी कि ये ना हो कि आसमान से गिरी और खजूर में अटकी वाली मिसाल हो जाए, कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वो शायद मेरे खौफ को समझ गया था। कहने लगा, मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, मेरा भरोसा करें, मुझे वाकई एक मुलाजमा की ज़रूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा खुद को किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई। 15-20 मिनट की मुसाफिर के बाद टैक्सी एक घर के पास जाकर रुक गई। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने भी टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे एक घर में ले गया। दूसरा हैरत का झटका मुझे ये देखकर लगा कि उसके घर में उस शख्स के अलावा कोई और नहीं था। अब तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। वो कहने लगा कि मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, आपको मुझसे कोई मसला नहीं होगा। आप सफाई, कपड़े धुलाई, खाना वगैरह सब कुछ बना दीजिएगा। मैं रात को 10 बजे ही लौटता हूँ। उस वक्त बेशक आप इस कमरे में चली जाएं, चाहे तो कमरा लॉक रखें, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों उसकी बात का एतबार करती? मैंने साफ इनकार कर दिया। वो खामोश सा हो गया। कहने लगा, आपको अच्छी तनख्वाह भी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। ये कहकर मैं वापस आ गई। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी और वो इलाका भी सुनसान था। मैं बाहर तो आ गई थी, लेकिन मसला फिर वही था कि कहाँ जाऊं। मैं अभी सीधा ही जा रही थी जब मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई और उसमें चंद औबाश किस्म के नौजवान बैठे थे। उनमें से एक ने कहा कि पीछे का दरवाजा खोलो और लड़की को जबरदस्ती अंदर बिठाओ। मैं ये सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी में मेरे पीछे आने लगी। मैं भागती हुई उसी घर के पास पहुंच गई और दरवाजा पीटने लगी। मैंने इतनी जोर से दरवाजा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी अब मेरे पास आके रुक गई थी। उसमें एक नौजवान बाहर निकला। मैं फिर से दरवाजा बजाने लगी। जैसे ही वो नौजवान मेरे पास आया, दरवाजा खुल गया था। वो नौजवान मुझे हैरत से देख रहा था। मैं पूरी तरह से बदहवास थी। फौरन उसे घर के अंदर चली गई और उस नौजवान के पीछे छुप गई। मैंने कहा, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़ा नौजवान कहने लगा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। उस गाड़ी से बाकी के 2 नौजवान भी उतरकर घर के पास आ गए थे, लेकिन वो नौजवान बड़ा मुतमईन खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी हुई थी। कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर उधर नजर मत आना, वरना जो हशर मैं तुम लोगों का करूंगा, अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगे। उसके बाद उस नौजवान ने जेब से एक कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। वो नौजवान एक पुलिस इंस्पेक्टर था। कार्ड देखकर वो बदमाश किस्म के नौजवान फौरन से भाग गए। जब उनकी गाड़ी दूर जा चुकी तो वो शख्स पीछे की तरफ पलटकर मुझे देखने लगा। अपना कार्ड जेब में डाला और मुझसे कहने लगा, अब वो लोग जा चुके होंगे, आप चाहें तो जा सकती हैं, और कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। मैं शर्मिंदा सी होने लगी थी। वो वाकतन एक अच्छा इंसान था, फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर पर महफूज रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने कहा, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं भी गांव से आई हूँ, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे रिहाइश भी मिल सके और काम भी। मैंने भी एक झूठ बोल दिया, क्योंकि सच सुनकर तो वो मुझे बुरा ही समझता, शायद नौकरी पर भी ना रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी और वाकई सुबह उठते ही वो घर से चला जाता था, फिर रात को 10-11 बजे ही लौटता था। मैं पूरा दिन अकेली होती थी, घर का इतना काम भी नहीं होता था। उसके आने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना तैयार होता था, वो खाकर बाकी का फ्रिज में रख देता था। जब मैं सुबह उठती तब वो जा चुका होता। किचन में पकाने का सारा सामान मौजूद होता था। एक बार मैं सुबह घर से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से हाय हाय की आवाजें आ रही थी। मतलब वो घर पर था, लेकिन कर रहा क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ, फिर सोचा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे कि क्यों मैं उसके कमरे में चली आई हूँ। मैं किचन में चली गई, लेकिन वो मुसलसल कर रहा था। लेकिन किचन में खड़े मुझे एक ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गया। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर उसके कमरे में गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कहीं उसे गोली ना लगी हो, इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में पहुंची, वो बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने पूछा, आज आप घर पर हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है?
मेरी बात सुनकर उसने जरा सी आंखें खोली। कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे चाय बना दें। वो बहुत धीरे से बोला। मैं वापस किचन में आ गई, अपने और उसके लिए नाश्ता बनाया। अपना नाश्ता किचन में ही रहने दिया और उसका नाश्ता उसके कमरे में ले आई। अब वो बेड के साथ टेक लगाए बैठा था। मैंने नाश्ते की ट्रे रखी, बाहर चली गई। दोपहर को उसके लिए यखनी बना दी। 2 दिन मैं उसका ख्याल रखती रही। इसी दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी थी। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा ख्याल रखा है। वो शख्स अच्छा था, मुझे अब उससे खौफ महसूस नहीं होता था, बल्कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। वो मुझसे अपने घर वालों की बातें भी करने लगा था। मुझसे पूछता कि मैं किस गांव से आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे कितने बहन भाई हैं। मैं उसे झूठ ही सब कुछ बताती रही। एक बार रात के 12 बज गए, वो वापस ना आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। पुलिस वाले नौकरियों में हादसात का होना अनहोनी सी बात नहीं होती, इसलिए मुझे वसवसे सताने लगे। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। मुझे उसके होने से एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। मुझे जब बेचैनी सी होने लगी तो मैं नमाज पढ़कर उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था। मेरी जान निकले जा रही थी। मैं रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊं। रात के 2:30 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था जब बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से बाहर आई, क्योंकि बाहर की चाबी उसके पास होती थी। वो खुद ही अंदर आता था, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा, मैं परेशान सी हो गई। उसके चेहरे पर चोटें लगी हुई थी और वो कुछ लंगड़ा कर भी चल रहा था। मैं बेख्तियार सी उसके साथ लग कर रोने लगी। क्या हुआ है आपको, इतनी चोटें कैसे लग गई, कहाँ थे आप? मैं कब से परेशान हूँ। एक ही सांस में मैंने न जाने कितने सवाल कर गई। वो मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। ये कहकर वो लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी बेख्तियारी पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, लेकिन अनजाने में जो कर बैठी थी वो गलत था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा। सुबह जब मैं कमरे से निकली तो सामने टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोटें लगी हैं तो आपने क्यों बनाया, मुझे कह देते। किस हक से? उसके सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसको देखने लगी। वो बहुत मुतमईन सा मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कैटल से मेरे लिए चाय डाली और कप आगे कर दिया। पहले आप नाश्ता कर लें। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तब कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको चाहने भी लगा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर ये है कि मैं आपसे निकाह कर लूं। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अपनी मर्जी से शादी करने का हक हासिल है। अब आप बताइए, और कब आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ने लगा। मैंने एक झूठी कहानी सुना दी कि मैं घर से भाग कर आई थी। मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बदमाश से करना चाहती थी। वो अब भी मेरी बात खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम आज ही निकाह कर लेते हैं। मैंने उसे अपनी रजामंदी दे दी। मैं बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरज़ू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे बता देती कि मैं कौन हूँ तो वो मुझसे नफरत करता, मुझसे शादी भी ना करता। हमारा निकाह अब हो चुका था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की खुशियों की मुद्दत बहुत कम होती है। एक दिन वो घर पर आया तो बहुत परेशान था। कहने लगा, जल्दी से तैयारी करो, हमें ये घर छोड़ना है। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, अभी वजह बताने का वक्त नहीं है। मैं तैयार हो गई और हम लोग इस्लामाबाद चले गए। वहाँ एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। मैंने अपने शौहर से बहुत बार यहाँ आने की वजह पूछी, लेकिन उसने कहा मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है। लेकिन न जाने क्यों वो परेशान सा रहने लगा था। मैं उससे बातें करती रहती, लेकिन वो न जाने कहाँ खोया रहता। एक बार बाहर दरवाजा बजा। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर इस वक्त घर पे नहीं था। मैंने जैसे ही सामने का दरवाजा खोला तो वहां वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखकर मेरी रूह ही फना हो गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था।
वो मुझे मारते हुए अपने साथ ले गई। मैं रोती बिलखती उसकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं वापस कोठे में पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा था। यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो है मौत। मैं रोती रही। मेरी अजियत के दिन फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ रात को हुआ, इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला मेरा गाहक मेरा शौहर था। उसे देखकर मुझे लगा कि वो मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठिठक सी गई। वो अंदर आकर बोली कि तुम क्या समझती हो कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। ये तेरे पीछे साए की तरह था। तेरी बस में भी, तू जहां नौकरी लेना चाहती थी वहां भी, ये तुम्हें तुम्हारे कहने पे ही अपने घर लेकर गया था। तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी थी। ये कोई पुलिस वाला नहीं है। कि सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। अब भी चुप था, मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास चली गई। मैंने कहा, क्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, और क्यों? मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख ना होता। मैंने मर्दों का बस एक ही रूप देखा था, और वो था एक हवस का मारा हुआ दरिंदा नुमा मर्द। लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं, शरीफुन नफ्स भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बाकी रह जाती। मेरे रोने पर, बातें सुनाने पर भी वो चुप था। कुछ ही देर में पुलिस के मोबाइल की आवाजें आईं। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, कहाँ से आ गई? मेरे शौहर ने कहा कि मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी। उसने जेब से निकाहनामा निकाल कर दिखाया। उन्हें कहने लगा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने मुझसे चोरी छुपे मेरी बीवी को अगवा किया और यहाँ ले आई है। वो औरत हैरान और परेशान थी। कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को अपने साथ ले गई थी। वो मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं एक जासूस हूँ, पैसे लेकर जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी वाकफियत थी, क्योंकि मैं उनके लिए भी जासूसी करता था। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहा था, लेकिन न जाने कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। उस दिन भी मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैंने सोचा कि तुमने मुझे कोई बात नहीं बताई है। तुमने अगर गुनाह किया तो अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मजबूरन और जबरन किया है। इसलिए सोचा कि एक निकाह ही ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो, बिना किसी खौफ के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए। उसके बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।